ये जो आज भी हम सुनते हैं कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को एक परिवार समझता है, पूरी दुनिया को एक समझता भेदभाव है, नहीं करता, बिल्कुल। तो ये समझो आज के अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एपीजे अब्दुल कलाम इंस्पायरिंग स्पीच ऑन इंडिया एट यूरोपियन पार्लियामेंट। सो स्टार्ट करते हैं। It's a great pleasure to have you here in the Parliament, Mr. President. You know, we have two seats, Brussels and Strasbourg, so Europe is complicated, Mr. President. So if you have some time. Thank you so much. Dankeschön. Thank you so much. Welcome. Great pleasure. Thank you so much. Great pleasure. Merci beaucoup. Voilà. The President of the Republic of India. Respect. Respect. European Parliament में speech दीजिए। Ladies and gentlemen, I am indeed delighted to be with the honorable members of the European Parliament on the occasion of the Golden Jubilee year of the European Union. I am reminded of the dream of an Indian poet, Kaniyan Pungundranar, who articulated in 3000 years back in Tamil classic Purananur. He says, Yadum Ure Yavarum Kelir, which means I am a world citizen. Every citizen is my own kith and kin, he said 3000 years back. Now what we need is a carrier of eternal goodness and wholesomeness in human contact, which is called righteousness. Righteousness. As we say in India, where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world. O European Union, let your mission spread everywhere like the air we breathe. That's a point. Finally, friends, let me convey my greetings of 1 billion people of my country to all the honorable members of the European Union and through you to all the citizens of European Union countries. May God bless you all. Mr. President Abdul Kalam, in the name of the European Parliament, I want to thank you for this important and inspiring speech. This was one of the most extraordinary speeches we have ever heard. From a statesman, scientist and poet, this is unique. All the best to this great nation, India. All the best to our cooperation between the great nation India and the European Union. All the best, Mr. President. All the best. जी जनाब। बहुत ही ज़्यादा जी सम्मान, बहुत ही ज़्यादा इज्जत। अच्छा,
उन्होंने स्पीच तो बहुत इंस्पायरिंग थी, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है। बाद में उन्होंने उनको कैसे सराहा, वो जो बहुत रिस्पेक्ट दी बहुत रिस्पेक्ट दी, और उन्होंने कहा कि हमने अब तक जितनी इंस्पायरिंग स्पीचेस सुनी हैं ये उनमें से एक है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर उन्होंने कहा कि बहुत यूनिक बात है कि एक साइंटिस्ट और एक पॉलिटिशियन, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है अपने आप में, एक बहुत ही अच्छा कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता कोई बंदा कि अच्छा। कोई प्रेसिडेंट को भी, कोई साइंटिस्ट भी हो सकता है, या कोई साइंटिस्ट कभी प्रेसिडेंट भी बन सकता है। ये यूनिक चीज़ इंडिया में हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि मुस्लिम जिन्होंने कुछ किया है देश के लिए उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाता है, सही, ठीक है ना, जिन्होंने कुछ किया है उन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है, चाहे बहुत वो बड़ी, कुछ भी हो, बिल्कुल। चाहे वो कुछ भी हो, अच्छा, लेकिन अभी जो उनका सम्मान, जो उनकी रिस्पेक्ट, जो उनकी इज्जत है और जो बनती है, जो देनी चाहिए, जो किसी को भी मिलेगी वो उनको भी मिलेगी। अच्छा, आज पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें हमने इन्हें देखा, वीडियो में पहली मर्तबा पिक्चर्स पहले देखी थी, आज हमने इन्हें बोलते हुए भी देखा आप लोगों की वजह से। तो बोलते हुए जो इनका स्टाइल, जो इनका तरीक़ेकार, जो इनका लब्बो लहजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा आजिज़ी इनके सारी, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, और मुस्कुराहट बहुत हसीन है, बहुत मतलब प्यारी। यकीन करें वो मतलब एक इंसान दिल से मुस्कुराता है, दिल से हंसता है ना, ये मुझे लगते हैं बड़े प्योर इंसान है, सादा लग रहे थे, बहुत सादा और सादगी प्योर, इनके अंदर। मतलब जो दिल में वो मुंह पर वो एक्सप्रेशंस हैं। दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहूँगी कि जब बोल रहे थे ये, तो एक ही बात को 2 बार कम से कम रिपीट करते हैं ताकि बात समझ में आए तरीके से, अच्छे से, और सामने जो सुनने वाले हैं उनको कोई डाउट या कोई ऐसा ना हो कि समझ ना आए, क्लियर ना हो। क्लैरिटी के लिए मैंने नोटिस किया 2 से 3 सेंटेंसेस थे जिनको उन्होंने दोबारा रिपीट करा, जोर देने के लिए। जब हम किसी बात पे जोर देते तो हम उस बात को बार बार रिपीट करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। शॉर्ट बोला लेकिन वजन वाला बोला, इतना अच्छा बोला कि उन्होंने वो तारीफ किए बगैर नहीं रह पाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और रिपीट इसलिए करते हैं कि बहुत अरसा टीचर रहे हैं, तो जब टीचर होता है इंसान तो बार बार रिपीट करके दोबारा से बताता है। अच्छा, ये जो आज भी हम सुनते हैं कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया को एक परिवार समझता है, पूरी दुनिया को एक समझता है, नहीं करता, बिल्कुल। तो ये समझो आज के दौर की बात नहीं है, उस टाइम से है जो इन्होंने इनकी स्पीच से हमें जाहिर हुआ कि क्या सोच है हमारी, किस तरीके से हम दुनिया के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं या किस तरीके से हम दुनिया को समझते हैं, वो इन्होंने मतलब है कि बताया। यानी कि ये समझो पुरखों से चली आ रही है, ये कोई नई रवायत नहीं है, या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनको उन्होंने अभी अडॉप्ट किया हो, किसी की देखा देखी। ये वो चीज़ें हैं जो इनके पूर्वज, जो इनके आबाउजदाद से चली आ रही है। दूसरी बात ये है, अच्छा फुटेज देखकर लग रहा था पुराना है, क्योंकि जब ये प्रेसिडेंट थे ये तब का ही फुटेज होगा यकीनन, बिल्कुल। और जब इनको बुलाया गया तब भी मैंने देखा सम्मान की कोई इंतहा नहीं थी, और जब इनको जिस तरीके से प्यार के साथ, रिस्पेक्ट के साथ बिठाया गया, और बाद में भी इनके आगे पीछे हो रहे थे इज्जत में, बहुत रिस्पेक्ट। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि इस पार्लियामेंट में जो सबसे बड़ा अफजल हो, चीफ गेस्ट होता है ना, जो क्योंकि और भी थे, जिससे मिलकर आपको ऐसा लगे कि वाकई यार मेरे तो बारे न्यारे हो गए, यानी कि मेरे तो भाग खुल गए, ऐसे बोलते हैं ना लोग। इनके आगे पीछे जब हो रहे थे तो मैं यही सोच रही थी यार और भी तो लोग होंगे, तो इनको ही इतना सम्मान, इतनी रिस्पेक्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे लोगों का खुशी का ठिकाना नहीं था इनको देखकर, इनसे मिलकर, इनसे बात करके। अच्छा, ये हमारे यहाँ पे बहुत ही जिस तरीके से हम तो रिएक्शन दे रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम आप लोगों की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं बहुत कम वायरल होती हैं, बहुत कम पहुँच पाती हैं। बिल्कुल, मतलब है कि रिएक्शन के थ्रू तो हमें तो काफ़ी कुछ मिलता है, एक आम इंसान तक आप कहना चाहते हैं कि नहीं, एक आम पाकिस्तानी तक। तो एक वीडियो ऐसी है या एक पोस्ट ऐसी है जो मैंने ग्रुप्स में देखी, जो हमें तो बहुत पहले पता चल गई थी, लेकिन हमने ग्रुप्स में देखी। द्रौपदी मुर्मू जो अभी सदर बनी है इंडिया की, बहुत वायरल हुई। वो पाकिस्तान में व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पे बाकायदा लोग एक सम्मान दे रहे हैं, एक इज्जत दे रहे हैं, बना रहे हैं उनके ऊपर। तो मतलब मैं भी हैरान हो गई पॉजिटिव वे में कि यार एक गरीब घराने की एक आम खातून आदिवासी जिन्होंने तालीम के ऊपर काम किया, तालीम के ऊपर वर्क किया, उन्होंने एक सोशल एक्टिविटीज़ की, और एक मतलब है कि कोई बड़े घराने से नहीं थी। मैं कहूँगा हमारे जहन में, हमारे तसव्वुर में ये है कि सियासत अमीर लोगों का काम है, सियासत कोई गरीब बंदा करे हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ ये चीज़ फिट है। तो इस वक्त पाकिस्तान में जब ये चीज़ लोग देख रहे हैं तो हैरान हो रहे हैं। अच्छा, बाकायदा नेचर में भी बिल्कुल सादगी है द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, पता नहीं क्यों मैंने इनके इतने मिनिस्टर्स देखे हैं, किसी को भी मैंने
बहुत प्राउडली, बहुत एटीट्यूड वाला नहीं देखा। आप नितिन जी को ले लें, आप योगी जी को ले लें, आप मुर्मू जी को ले लें, आप अभी एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह को ले लें, बिल्कुल सादा मतलब लोग बहुत थे। पुराने से पुराने ले लें, नए से नए ले लें, सबकी तबीयत में बला की सादगी, तबीयत में बड़ी मतलब एक होती है ना पुरसुकूनियत, बहुत जल्दी नहीं, अफरा तफरी नहीं, टेंशन नहीं, सुकून, और दूसरा आजिज़ी। ये 3 फैक्टर आप यकीन करें कि किसी भी मिनिस्टर को उठा के ले लें, चाहे वो आप अटल बिहारी को ले लें, चाहे वो किसी को भी ले लें, 3 ये फैक्टर, ये 3 एलिमेंट्स में ये कहूँगी ये वो अनासिर हैं जो इनके हर मिनिस्टर में पाए जाते हैं। अच्छा, इत्मीनान, सुकून चेहरे पे, बॉडी लैंग्वेज में कब होता है? जब इंसान ईमानदार होता है, मुझे लगता है। जब वो वाकई उसका दिल सुकून में होता है। दिल सुकून में उसने कब होता है? कुछ गलत नहीं करा, कुछ बुरा नहीं करा, कुछ गलत नहीं करा किसी के भी साथ। हम कोई चोरी वोरी की बात नहीं करी, मैं कोई भी काम कह रही हूँ जो गलत नहीं किया, कोई गुनाह उसने नहीं किया, ठीक है ना, जिससे किसी का दिल दुखा हो, जिससे कोई हर्ट हुआ हो, जिससे किसी को परेशानी हुई हो, और जिसको लेकर उसका ज़मीर भी मलामत उसको करे, तो वो सुकून में नहीं आता, वो बार बार वही सोचता है। लेकिन इत्मीनान और सुकून दिखकर ऐसा लगता है कि यार ये लोग तो बिल्कुल फरिश्ते हैं, इन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं होगा। उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। थर थर हरतर पड़तर जैसे होती है ना, जैसे टेबलें पटक देना, फाइल्स पटक देना, माइक उठा के फेंक देना। समझ गए ना? समझ गए। समझ रहे हो ना? समझ लो। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ने आवाज़ आज इनकी फ़र्स्ट टाइम हमने सुनी, बहुत ही मतलब पोलाइट, बहुत ही हम्बल, बहुत ही आजिज़ी, बहुत ही मुकस्सरी, हाँ, लेकिन सादा, बिल्कुल सादा इंसान लगे। बहुत सादा। मुस्कुराहट जो थी आखिरी में जब वो उनकी तारीफ़ कर रहे थे तो वो फिर अच्छा बार बार ऐसे, यानी कि ये नहीं कि आप तारीफ करें तो मैं बहुत गरूर में आ जाऊँ, मगरूर बन जाऊँ कि भाई मेरे तो आगे पीछे 4 लोग आपके आगे पीछे हो जाएं, फिर इतना बड़ा पार्लियामेंट। अच्छा गोल्डन जुबली थी, बिल्कुल बड़ी बात है, वो उस टाइम पे इन्हें बुलाया गया। हाँ, उसमें बुलाया गया इनको, लेकिन बार बार सम्मान, अगर कोई सम्मान दे रहा है तो ये भी झुककर बार बार, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि फौरन रिस्पॉन्स। बिल्कुल सादा तबीयत के इंसान लगे। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।